مسافر قسط نمبر 44۔ چونکہ لالٹن اور میرے درمیان سردار حیدر خان کا وجود حائل تھا، اس لیے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کی آنکھیں اس وقت شعلے اگل رہی تھی۔ جبڑوں کے اعصاب بڑی تیزی سے تھرک رہے تھے۔ کئی ثانیے ایسے ہی گزر گئے تو مجھے اور میں اسے گھورتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی بھاری اور کڑکدار آواز میں مجھے غلیظ گالی دیتے ہوئے ٹھیٹھ سرائکی میں کہا، بڑا لاٹ خان بنتا تھا۔ اچھی نسل کا کتا پیروں میں دم ہلاتا رہے تبھی اچھا لگتا ہے۔ گندی نسل اپنے مالک پر بھونکنے سے باز نہیں آتی، تبھی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے کتے ہماری طرف بوتی اٹھائے ہیں تو انہیں فائر مار دیا جاتا ہے یا کچلا ڈال کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تم بھی گندی نسل کے کتے ہو۔ میں نے بدقت تمام اپنے کھولتے ہوئے خون کو زہر اگلنے سے روکا اور جواب نہیں دیا۔ تو چند لمحوں کے توقف سے بولا، بتاؤ بھوتنی کے بچے، خانزادی کہاں ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں گزشتہ حالات کی تجزیاتی فلم چلا کر فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا بتانا تھا اور کیا چھپانا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، اسما۔ وہ ایک دم تڑ پر غرایا، اپنی گندی زبان سے خانزادی کا نام مت لو ورنہ ابھی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میرا دماغ گھوما مگر کچھ نہ کر پانے کی حالت میں پڑا ہونے کی وجہ سے خون کے گھونٹ پی رہ کر بولا، وہ میاں دلبر کے پاس ہے۔ کیڑا میاں دلبر؟ اس نے سانپ کی طرح بل کھایا۔ میاں دلبر حسین، اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ لاہور کے علاقے کا کوئی مشہور سیاستداں ہے۔ میں نے اسے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لبوں پر قفل لگ گیا۔ ایک ٹک مجھے پھر استاد ببلو کو دیکھنے لگا، پھر پھولے بھی سانسوں کے درمیان بولا، ببلو، یہ میں کیا سن رہا یہاں؟ سردار ببلو کی آواز میرے کانوں میں پڑی، آپ جو پوچھنا چاہتے پوچھیں، آپ کے بعد اس کے بیان کی پرکھ رکھنا اور سچ نتارنا میرا کام ہے۔ حیدر خان میری جانب مڑا اور دھاڑا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میاں صاحب کا خانزادی والے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میرے اندر آگ دہک رہی تھی مگر لہجے کو مؤدبانہ رنگ دیتے ہوئے بولا، اس نے خانزادی کو 2 کروڑ روپوں میں خریدا ہے۔ کیوں؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ سردار حیدر خان کی ایما پر یہ سودے بازی کر رہا ہے۔ حیدر خان کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے میڈم میاں دلبر حسین اور مجھے بے نقص سنائی۔ اس دوران مجھے 4-5 لاتیں بھی رسید کی جو لحاف کی وجہ سے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ استاد ببلو نے اپنے منہ پھٹ فرعون کا غصہ ٹھنڈا کیا اور سرد لہجے میں مخاطب کیا، یار اگر تمہاری کوئی بات بھی غلط ثابت ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ سوچ کر بولو۔ تمہاری کئی بات کو میں پرکھوں گا اور اس کے بعد تمہاری زندگی کا فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کچھ جانتا ہوں بتا رہا ہوں۔ اسے میری بے خوفی نے مضطرب کیا مگر وہ فوری طور پر اپنے آپ پر قابو پا گیا۔ میری شاہ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی قلبی کیفیت کو چہرے تک نہیں آنے دیتا۔ یہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی جس کا مظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ خانزادی کو کون میاں دلبر کے پاس چھوڑنے گیا تھا؟ میں کہاں؟ بورے والا میں۔ مجھے سخی محمد کی بہم پہنچائی معلومات یاد تھی اور میں نے اپنی کہانی میں صداقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہی معلومات کا سہارا لیا۔ بورے والا شہر میں؟ اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ دقت تمام اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا، نہیں کسی مضافاتی گاؤں میں۔ بد نسل کتے، اس گاؤں کو کچھ نام بھی تو ہوگا نا؟ کیا بورے والا شہر کے قریب واقع ہے؟ خان پھاڑ کھانے والے انداز میں مجھ سے بولا، نہیں بورے والا سے دور، دریا ستلج کے کنارے پر واقع تھا۔ میں نے کہا، مجھے گاؤں کے نام کا علم نہیں۔ میاں صاحب نے خانزادی کو خود وصول کیا تھا؟ نہیں، میں نے میاں دلبر حسین کے حکم پر وہاں کسی ڈیرے پر اس کے کارندے تک خانزادی کو پہنچایا تھا۔ اس کتے کا نام جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ خانزادی کو اسی کے حوالے کرنا ہے؟ ہمارے درمیان کوڈ ورڈز طے کیے گئے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرا چہرہ میرے جھوٹ کی چغلی نہ کھائے۔ اس ڈیرے کا محلے وقوع بتاؤ، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا، ڈرائیور کو راستے کا علم تھا۔ کیا تمہیں راستہ یاد ہے؟ مجھ پر تھوڑا سا جھکا اور سانپ کی طرف پکارا۔ اس کے منہ سے شراب کی ناگوار بو آ رہی تھی۔ ہاں میں وہاں تک جا سکتا ہوں مگر لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرا جھوٹ اپنا اثر دکھا رہا تھا اور میرے سر پر مسلط پوری موت کو ٹالنے لگا تھا۔ میری دانش میں اب تک اسما تک رہنمائی اور اس کی بازیابی تک مجھے قتل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ خانزادی کو تمہاری کنجری مالکن نے اغوا کیوں کیا تھا؟ حیدر خان پھنکارا۔ میں نے کہا، اس بات کا آپ کو علم ہے خان صاحب؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، کھوتی دا پتر، میرے کو ہر گال دا پتہ ہے پر میں تیرے منہ سنا منگدا۔ تھپڑ زوردار تھا مگر میرے منہ سے نکلنے والی تیز چیخ کی اصل محرک وہ تکلیف تھی جو زخم دکھنے سے پہنچی تھی۔ میرا بدن جھٹکے لینے لگا اور منہ سے کراہیں خارج ہونے لگی۔ اس نے اسے میری اداکاری سمجھا اور دانت پیس کر غرایا، ایک چاٹ نال ای تڑپن پہ گیا نام مرادہ،
وہ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਸਰਡਾ ਡੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਬਬਲੂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝਾ के नहीं था कल दा मरदा आज मार पोसी। इसने फौरन बढ़कर मेरी उतरी हुई पट्टी खींचकर अपनी जगह पर दोबारा एडजस्ट की और मुझे धमकाने के बजाय बरंगेख्ता हैदर खान से मुखातिब हुआ। खान साहिब इसके सर में गहरा जख्म है, वो दुख गया होगा, आप ज़रा हाथ हल्का रखें, ऐसा न हो कि ये मरदूद गुजर जाए और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए। ओए चुप कर, बताओ तुमने अपनी बहन को कहाँ छुपा रखा है? इसने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेला। ऐसा जख्म कुरेदा जिस पर मैं अभी तक कोई मरहम नहीं रख पाया था। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की मगर मेरी बदली सकत जवाब दे गई। आंखों के सामने एक सूरज चमका और मैं होशो खिद की सरहद अबूर कर गया। मेरी बेहोशी ने वक्ती तौर पर इस बिफरे फिरौन से मेरी जान छुड़ा दी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। कमरे में धुआं फैला हुआ था जिसकी वजह से घुटन महसूस हो रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। साथ वाले चारपे पर गुज़श्ता दिन वाले पहरेदार एक फूलदार रज़ाई में लिपटे बैठे थे। कमरे की एक नुक्कड़ से धुआं उठ रहा था। शायद पहरेदारों ने सर्दी से बचाव के लिए लकड़ियों की आग जला रखी थी। मेरे बदन पर लिहाफ मौजूद था, इसके बावजूद मैं सर्दी से कपकपा रहा था। मुझे अपने सर के बाल गीले महसूस हुए। मेरा गिरेबान और कालर भी भीगा हुआ था जिसकी वजह से सर्दी का एहसास फजूतर था। शायद मुझे होश में लाने के लिए पानी छिड़कते रहे थे, फिर नाकाम होकर आज का काम कल पर टाल कर चले गए थे। मेरे जिस्म में पैदा होने वाली हरकत ने दोनों ऊँगते पहरेदारों को चौकन्ना कर दिया। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। बड़ी मूछों वालों ने बेरहमी से कहा इस वक्त आराम से पड़ा रहे, बाहर बड़ी सर्दी है। मैंने कहा मुझे भी सर्दी लगती है मगर वॉशरूम में जाना ज़रूरी है वरना। मेरी आवाज़ मेरे बदन की तरह काँप रही थी। इसने मेरी अधूरी बात को धमकी समझा, तभी घुर्रा कर बोला क्या वरना, क्या गिरेगा तू? मैंने बेबसी से कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगा मगर वो कुछ हो जाएगा कि तुम लोगों का यहाँ बैठना मुहाल हो जाएगा। वो मेरी बात में मुज़म्मित धमकी को समझ गया, तभी बुरा सा मुंह बनाकर अपने साथी से मुखातिब हुआ चलो जेदिया, इस खोते के बच्चे ने तो मरना ही है, हमें भी सर्दी में मार कर दम लेगा। जेदा मुझे गाली देते हुए रजाई से निकलकर चारपाई से उतरा और सहारा देकर बिठाते बेजारी से बोला तुम्हें भी इस वक्त ही जागना था। हमारे सर्दी के मेरे दोनों घुटने पेट से लगे हुए थे। मैंने बेबसी से कहा यार नाराज़ क्यों होते हो, मुझे भी इतनी सर्दी में बाहर निकलने का कोई शौक नहीं है, वो भी चिड़े की तरह बेहुदा अंदाज में फुदकते हुए। इसने क्लिप खोला, फिर दोनों मुझे पकड़कर कमरे से निकाला। बाहर वाकई सर्दी हद से ज्यादा थी। ठंडी हवा का थप्पड़ बदन को चीर गया। जमीन ठंडी थी, यूं लगा जैसे मेरे पैर नंगे जमीन के बजाय बर्फ पर पड़े थे। मेरे दांत बजने लगे। वो दोनों वॉशरूम के बाहर रुक गए जबकि मैं अंदर चला गया। बाहर चांदनी फैली हुई थी, अंदर अंधेरे का राज था। एक बार फिर वो तकलीफ से मरहला दरपेश था जिससे मैं एक मरतबा पहले गुजर चुका था। मज़े का खेज अंदाज में बैठकर भी मैंने क्लिप को टटोलने का अमल जारी रखा। कम वक्त अजीब साख्त का था, इसका मैकेनिज्म समझ में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वॉशरूम से निकले तो अपनी कपकपाहट पर किस हद तक काबू पा चुका था। मुख्तसरुल वजूद जीदे ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ खींचा। एक उम्मीद गोंदे की तरह मेरे जहन में लपकी और मैंने सुरसी से झटका दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुड़ने लगा, तभी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाकर मुझसे आन टकराया। मैंने बिजली किसी सूरत से गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किया, उसे खींचकर पहलू से लगाया और पलक झपकने की सी देर में अपना दाएं हाथ उसकी गन पर डाल दिया। कुछ जब तक संभलता तब तक न सिर्फ वो मेरे फौलादी शिकंजे में जकड़ा जा चुका था बल्कि इसकी गन भी मेरी दस्तरस में आ चुकी थी। मेरे गैर मुतवक्किर रद्दअमल को भांपते और ख़ुद को संभालने में इसके साथी को कुछ वक्त लगा। इस दौरान बिसात पलटी जा चुकी थी। मैं घुर्राया, गन नीचे फेंक दो वरना भून कर रख दूंगा। मेरी गिरफ्त में मचलने वाला जेदा जिस्मानी तौर पर मुझसे खासा कमज़ोर वाक़ई हुआ था। वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद खुद को छुड़ाने में नाकाम साबित हुआ था। इसने अपनी कोहनी मेरे पेट और मेरी कमर पर मारी। थक कर थम गया। अब इसे सांस लेने में भी दिक्कत पेश आने लगी थी, फिर हौले हौले खांसने लगा था। इसका साथी कार मुज़ाहमत का फैसला करने से हिचकिचा रहा था। मैंने उसे पहले से ज़्यादा रुश्तेजे में गन फेंकने का हुक्म दिया। उसने बेबसी से जेदे को देखा और कंधे उचकाकर गन अपने कदमों में ज़मीन पर रख दी। मैंने अपने बाजू को जोरदार झटका दिया और कहा यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? उसके हलक से आवाज़ नहीं निकली। लंबी मूछ वालों ने कहा हम 2 आदमी हैं। मुझे एक ज़रा तज्जुब हुआ क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों को यहीं मौजूद होना चाहिए था। इनके अलावा हवेली में पहले से रहाइश पजीर लोगों की यहाँ मौजूदगी भी ज़रूरी थी। मैंने पूछा बबलू और मुगलानी कहाँ हैं? वो बोला नगर गए हैं बड़े खान के साथ। बलोच नगर में सरदार हैदर खान का महल वाक़ था। मुझे इस समझने में देर नहीं लगी कि अपने आका के साथ महल के पुर आसाइश माहौल में शब बसरी की गर्ज से चले गए थे। मुझे इनकी बात का यकीन करना पड़ा।
क्योंकि अगर कोई और हवेली में मौजूद होता या गहरी नींद सो रहा होता तो मेरी आवाज़ सुनकर अब तक खचार से निकलकर सामने आ चुका होता। मैं चाहता तो दोनों को शूट कर सकता था, मगर इस एहतियात के पेश नज़र के फायर के बाद मुझे किसी परेशानी से दो चार न कर दे। मैंने गन फेंकने वाले को चंद कदम पीछे हटने का हुक्म दिया। ना समझते हुए पीछे हटा। मैंने जेदे की गर्दन को जोरदार झटका दिया और चाहा कि इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दूं, मगर ऐसा ना हुआ। इसकी हड्डी तो बच गई, मगर मेरा काम हो गया। इसके हलक से नहायत डरावनी खरखराहट निकली और बदन अचानक ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो गया था। जो ही मैंने इसकी गर्दन छोड़ी, वो ज़मीन पर बेजान अंदाज में ढेर हो गया। इस खतरे के पेश नज़र के वो बेहोशी की अदाकारी न कर रहा हो। मैंने गन की नाल का कुंदा पूरी कुव्वत इसकी कनपटी पर दे मारा। इसके जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। वो गहरी बेहोशी में था या जिंदगी की बाजी हार चुका था। मैंने इत्मीनान महसूस किया और गन का रुख चंद कदम दूर खड़े मूंछ पजार शख्स की तरफ कर दिया, जो हैरत पाश नजरों से मुझे घूर रहा था। इसने मेरे हाथ में पकड़ी गन का रुख अपनी जानिब होते देखा तो खौफ के मारे हाथ सर से बुलंद कर लिए और घिघियाने लगा। मैंने कहा, यह क्लिप कैसे खुलता है? पता नहीं, जेदा ही खोलता था। वो मिनमिनाया। मुझे अंदाजा हुआ कि वो गलत बयानी नहीं कर रहा था। मौत को सामने देखकर झूठ बोलना भी बड़ा दिलगुर्दे का काम होता है। मैंने डपट कर कहा, ठीक है, मुझे मुर्दों को बुलाने का हुनर आता है। तुम अपना रुख दूसरी तरफ फेर लो। वो पैरों पर घूम गया। मैं फुदक तो उसके अकब में पहुंचा और गन को नाल से पकड़कर पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। उसके अलग से चीख बरामद हुई। वो पलटना चाहता, मगर मेरी दूसरी ज़रब में उसे मौका नहीं दिया। सर से खून का फवारा फूट पड़ा और वो लहराते हुए ज़मीन बोस हो गया। मैं ज़मीन पर बैठकर क्लिप को टोलकर उसका चोर से तलाश करने लगा। बसत कोशिश भी कहीं ना मिला तो परेशान हो गया। ध्यान किया तो पता चला कि इस मनहूस क्लिप की साख्त ऐसी थी कि जैसे गोली मारकर तोड़ भी नहीं सकता था। गोली मेरी किसी टखने पर लग सकती थी। इससे निजात हासिल करना ज़रूरी था, वरना मैं 100 कदम भी नहीं चल सकता था। मैंने एक बार फिर कोशिश की। किस्मत ने साथ दी और मुझे उंगलियों के एक नन्हा सा उभार महसूस हो गया। उसे दबाया, दाएं खिसकाया, मगर क्लिप ने ना खुलना तो नहीं खुला। फिर मैंने गन अपने घुटने के साथ लगाकर ज़मीन पर खड़ी की और जल्दी जल्दी उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। ऐसे में अचानक ही बटन दब गया और क्लिक की आवाज़ के साथ ही क्लिप खुल गया। मेरे रगों पे में बिजली भर गई। गन उठाकर उछला और हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जिंदगी की कभी उम्मीद ने मेरे तन बदन में नई हरारत फूंक दी थी। सच कहते कि जिंदगी चीज़ ऐसी होती है, अपने पास बुलाती है तो मुर्दा कदमों में भी जान पड़ जाती है, झटक कर फेंक देती है तो शोला बादाम में वजूद में गर्दिश करने वाला दहकता हुआ लावा आने वाहिद में जम जाता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ भी ऐसी कि जिस पर कोई दुनिया, कोई हरारत, कोई मौसम असरअंदाज नहीं हो सकता। मैं फाटक नुमा चौबे दरवाजे के बाहर पहुंचकर एक जरा ठहरा। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें बता रही थी कि कुत्तों की तादाद 1 से ज़्यादा है, 2 या 3। मुझे कुत्तों से निपटना आता था, मगर इस वक्त मेरे जिस्म पर जमा हुआ खून चिपका हुआ था। सर का जख्म भी मौजूद था। कुत्तों को खून की बूंदें दीवाना कर देना था। ऐसी हालत में कुत्तों पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मैं पलटा और बरामदे में मौजूद सालखुदा सीढ़ी की तरफ बढ़ा। ऐसे मुझे बेहोश पहरेदारों का ख्याल आया। वो होश में आकर मेरा ताकुब कर सकते थे। बईद ना था कि मुठभेड़ होने पर वो गोली भी मार देते। मैं पलटा और तेजी से जेदे के करीब पहुंचा। इसकी नब्ज चेक की। इसकी जिंदगी का चिराग गुल हो चुका था। बड़ी मुछबरा जिंदा था। मैंने उसे ऊंधा किया। इसकी रीढ़ की हड्डी पर पांव रखकर खड़ा हो गया। गन एक तरफ रखी और दोनों हाथों उसकी कंघी उसकी थोड़ी के नीचे रखकर एक जोरदार झटका दिया। टाक की जोरदार आवाज के साथ ही मेरे हलक से भी दबी दबी चीख निकल गई। पूरी कुव्वत से झटका देने की वजह से मेरे सर का जख्म फिर दुख गया था। मैंने बदिक्कत तमाम खुद को मुंह के बल गिरने से बचाया। अपनी बरहना पाई के ख्याल कोंदी की तरह जहन में लपका। मैंने इसकी भारी भरकम मोरोजी खिड़ी उतार कर पहन ली। मेरी जेबें खाली थी, इस उम्मीद पर कि इसके पास रकम होगी। इसकी जेबें खंगाली। चंद नोट हाथ लग गए, यही बहुत थे। इन्हें गिने बजा जेब में डाला। खून आलूद कपड़ों पर निगाह पड़ी। ख्याल आया कि कमरों की सरसरी तलाशी लूँ, कोई सूट मिल जाए तो पहन लूँ। फिर जेब में तशवीश दौड़ गई। मैं फजूलियात के चक्कर में पड़कर अपने लिए खतरात मोल ले रहा था। मैं शॉटगन उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं और खाला पहली मरतबा इन्हीं सीढ़ियों के जरिए छत से उतरकर सहन में आए थे। बेखौफी से जानी बेचानी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया। यकीन हो गया था कि 2 मुर्दा पहरेदारों वाली खूनी हवेली खाली थी और मुझे रोकने वाला कोई जिंदा नहीं बचा था। चारों जानी फैली हुई चांदी में देखा भाला मंजर जगमगा रहा था। चूंकि मैंने बेले वाला रास्ता देख रखा था, इसलिए मैंने उधर का रुख करना मुनासिब न समझा। बलोच नगर और रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने गन अपनी कमीज के पल्लू से बांधी नीचे उतर आया। मुझे कुत्तों के टकराव का अंदेशा था,
इंक के भौंकने की आवाज़ें हवेली के अगले हिस्से की तरफ से बुलंद हो रही थी, मगर मैं मुतफक्किर था क्योंकि कुत्तों के सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। नाहमवार ज़मीन पर दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ मैं खेत में आ गया। सामने झंगी थी जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। चले चांद की दूधिया रोशनी में चलना मुश्किल नहीं था, मगर मेरे बुखारज़दा जिस्म पर नकाहत तारी थी, जबकि मुझे सड़क तक पैदल चलना था। सफ़र ज़्यादा और पुरखतर था। भेड़ियों और आवारा कुत्तों का सामना भी हो सकता था। मैं एहतियात से चलता झुंगी तक पहुंच गया। कुत्तों का खतरा टल गया और मेरी रफ्तार कदरे तेज़ हो गई। सर्द हवा के थपेड़ों ने मुझे जल्दी का एहसास दिलाया। मैंने मुर्दा पहरेदार के जूते उतार कर पहने थे, मगर उसका कोट उतारने का ख्याल तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मैं सरकंडो, कविंदर और जंगली घास में छुपे हुए पुरपेच रास्ते पर जनूब की तरफ सफ़र कर रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 से कुछ ऊपर का अमल था। रात बहुत सर्द थी। दरिया के कोब की वजह से फजा नम और मरतूब थी। सर्दी के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। तभी मुसलसल चल रहा था। खान की हवेली से दूर आ गया था, मगर पूरी तरह चौकस था। अंदाजे के मुताबिक मैंने निस्फ रास्ता तय कर लिया था जब मुझ पर नकाहत और यकबस्तगी तारी होने लगी। जलगार की शिद्दत गैर मामूली थी। हाथ और पैरों के बाद अब मेरा दिमाग भी शल होने लगा था और अजीब सी खाली ज़हनी किसी कैफियत तारी होने लगी थी। ये बहुत ख़तरनाक बात थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा इंतहाई सर्द रातों में फसलों की आबियारी की थी। नहर के पानी को खाल खाल चलाकर फसलों तक पहुंचाया था। तब कभी ऐसी कैफियत से वास्ता नहीं पड़ा था। मुझे खदशा लाहिक हुआ कि मैं पक्की सड़क तक पहुंचने में शायद कामयाब नहीं हो सकूंगा। ये बेसर्द सामा सफ़र मेरी कुव्वत इरादी और मेरी जिस्मानी इस्तादाद से ज़्यादा है। मैंने एक मुहिम से उम्मीद का सहारा लिया और शीशम के एक कदरे बुलंद दरख्त पर चढ़कर इर्द गिर्द देखा। किसी घर या डेरे के आसार दिखाई नहीं दिए। मगरबी जानिब के 2 मील दूर दरिया दिखाई दे रहा था। दरिया के किनारे कोई बस्ती आबाद नहीं थी। मेरे चारों तरफ कविंदर और जंगली घास फैली हुई थी। मैं दरख्त पर एक कुर्सीनुमा जगह पर तने से टेक लगाकर बैठकर हाथ पैर मसलने लगा। काश मेरे पास माचिस होती तो मैं घास फूस को आग लगाकर अपने मुंजमद होते जिस्म को हरारत दे लेता। मुझे एक मरतबा फिर अपनी गलती के शिद्दत से एहसास हुआ। हवेली से निकलते हुए खेत से कंबल और दियसर अपने पास रख सकता था, जिसका मुझे इस वक्त हरगिज़ ख्याल नहीं सूझा था। इस वक्त तो महज मुझ पर हवेली से जल्द अज जल्द भाग निकलने की धुन सवार थी। मैंने दरख्त पर बैठकर बहुत बड़ी गलती की थी। जल्दी मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो गया। घने सरकंडों और कविंदर में घिरे हुए रास्ते में हवा नहीं लगती थी। दरख्त पर बैठा तो यकबस्ता हवा बदन से पार होने लगी। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बैठ सकता था। अपने ज़हन पर छाई मायूसी की दबीज़ धुंध को नोच फेंकने की कोशिश की और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक बका की जंग लड़ने का फिलफूल फैसला कर लिया। कमीज़ का अकबी पल्लू फाड़ा और सर पर बांध दिया। कुछ सुकून सा महसूस हुआ और मैं दरख्त से उतर आया। एक मरतबा फिर अपनी कुव्वत इरादी को बुरेकार लाते हुए चल पड़ा। मैं बीट वाले मोड़ पर आकर एक जरा रुका। सामने वो रास्ता था जो डेरा रोड पर जा चढ़ता था। बाएं हाथ पर वो तंग और दुश्वार गुजार रास्ता था जो नहर की पटरी से जा मिलता था। ये नहर चौकुरेशी से कस्बा गुजरात और महमूद कोट जाने वाली सड़क को क्रॉस करती हुई उस तरफ आती थी और बल खाकर डेरा रोड को बीट के मुकाम पर अबूर करती थी। ये मालूमात मुझे खाले ने पहुंचाई थी। मैं सोच में पड़ गया। अगर मैं इस वक्त बेले से निकलकर बड़ी सड़क के वीरान मुकाम पर जा खड़ा होता तो कोई ड्राइवर मुझे देखकर गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। बेले का खतरनाक बेबानी मुकाम मेरा नागुफ्ता बै और मशकूक हुलिया, हाथ में पकड़ी हुई शॉटगन और सर पर बंधी हुई खूनालूद पट्टी। रात के इस पहर में कोई फातिरुल अकल शख्स ही इतना बड़ा खतरा मोल लेने का रुदाद हो सकता था। अगर मैं बीट वाली बस्ती की तो जा निकलता तो किसी न किसी घर से मदद मिलने की तवक्को की जा सकती थी। इसमें ख़तरा ये था कि मदद देने वाला पुलिस को मुतल्ला कर सकता था और मुझे बेखबरी में सरकारी पिंजरे में फंसा सकता था। दोनों तरफ खतरा मौजूद था। अगर मेरे हाथ दुरुस्त होते, उंगलियां मशकूक न होता तो मैं यकीनन बस्ती का रुख न करता। अपने दम बदम नातवा होते वजूद को संभाला देने की खातिर मैंने ना चाहते हुए नहर की पटरी की तरफ जाने वाला इरादा किया। बस्ती के किसी दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर मैं आग जलाकर सेंक सकता था, लाइन के होटल पर जाकर खाना खा सकता था, चाय पी सकता था और किसी ट्रक ड्राइवर की मिन्नत समाजत करके मुल्तान की तरफ आज़िम सफ़र हो सकता था। ये रास्ता बहुत दुश्वार गुजार और नाहमवार था। अगर आसमान पर चांद जलवागर न होता तो शायद मैं नहर की पटरी तक पहुंच ही ना पाता। ठोकर खाकर गिरने के बाद उठने का यारा ना था। जब मैं बेकाबिदा बस्ती में पहुंचा तो मेरे कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे। वजनी नरोजी खिड़ी मेरे पैरों को बुरी तरह काट रही थी, मगर मैं उसे उतार फेंकने की गलती नहीं कर सकता था। वो 1 घंटा भर पैदल चला था। आम हालात में मेरे नज़दीक ये कोई बड़ी मुसाफत नहीं थी, मगर रात के इस पहर की जानकुन सर्दी में चंद कदम चलना 2 भर था
जबकि मैंने कम व बेश 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। लोगों के बरक्स बक्सी कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया था और मैं खामोशी से गलियों से गुजरता हुआ पक्की सड़क पर आ गया। अंदाज़ा तो था कि इस वक्त सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम होगी, मगर ट्रैफिक कम बल्कि न होने के बराबर थी। ये छोटा सा आम नोयत का अड्डा था। वो मुश्किल 20-30 दुकानें थी जो इस वक्त बंद थी। फलों की रेहड़ियों और सब्जियों के फट्टे तरपालों से लिपटे हुए थे, जबकि अड्डे के इकलौते छप्पर होटल के बाहर भी सरकंडों की बनी हुई चिक दिखाई दे रही थी। आग सेंकने की ख्वाहिश अमेज तो को दम तोड़ गई। मैं चंद लम्हों तक नहर के पुल पर बनी हुई छोटी सी कंक्रीट की दीवार पर बैठा रहा, फिर फलों की एक मलफूफ रेली की तरफ बढ़ गया। थोड़ी सी तगोदो के बाद मैं 2-3 केले निकालने में कामयाब हो गया। इन्हें नजीदों की तरह हलक से उतारा, नलके की टूटी से मुंह लगाकर पानी पिया, शॉटगन की नाल को चूमा और पुल के करीब पड़े हुए बंद चौबी खोखे के नीचे फेंक दिया। एक हाथ रेडी पर से कदरे बेहतर हालत की तरपाल उतार कर चादर की तरह अपने जिस्म पर लपेट ली। अब मैं पहली नज़र में मशकूक दिखाई नहीं देता था और सर्द हवा से भी महफूज हो गया था। अतराफ का जायजा लेते हुए सड़क के किनारे पर आ खड़ा हुआ, गुजरने वाले 2-3 ट्रकों को रुकने का इशारा किया। एक लॉन्ग रूट की बस भी हॉर्न बजाती हुई गुजर गई। 15-20 मिनट गुजर गए। मुझे डर लाहिक हुआ कि कहीं कोई पुलिस की गाड़ी इधर ना निकले। रंग बिरंगी बत्तियों के जलों में आती हुई बस दिखाई दी तो मैंने दोनों बाहें लहराकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। वो नहीं रुकी, मगर उसके ऐन पीछे आने वाली कॉल्टस कार रुक गई। एक शोख आवाज़ सुनाई दी, और जहाज़ के थवे से। मैं जल्दी से करीब हुआ। कार के अंदरूनी लाइट ऑन थी। धमकदार आवाज़ में टेप प्लेयर पर लता मंगेशकर का कोई गीत चल रहा था। ड्राइवर सीट पर नहायत वजी और खुश लिबास जवान बैठा हुआ था, जो पहली नज़र में खरंडी तबीयत का मालिक मालूम होता था। मैंने कहा, मुझे मुजफ्फरगढ़ जाना है। वो बड़ी मासूमियत से बोला, तो जाओ, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। मैंने दरवाजे पर झुककर मुतजाना अंदाज में कहा, कोई सवारी नहीं मिल रही, इसलिए बराह कर मुझे लिफ्ट दे दें। वो हैरत और दिलचस्पी अमेज नज़र मुझे देखते बोला, लिए से जहाज़ रखते हो, लेजे से पायलट अफसर, जबकि शक्ल से जख्मी मजदूर। कमाल के आदमी हो यार। चलो आओ बैठ जाओ, क्या याद करोगे। मैंने अपनी दरवाज़ा खोला तो वो जल्दी से बोला, नहीं यार, अगली सीट पर आओ। मैं इसके बराबर बैठ कर उसने शीशा चढ़ाया और गेर लगाते बोला, तुमने सर पर खिलजी दौर की टोपी ओढ़ रखी है, एक पट्टी झांक रही जिस पर खून लगा हुआ है, क्या हुआ? कहीं जहाज़ गलती से बिजली के खंभे पर तो लैंड नहीं कर गया था? मैंने जल्दी से कहा, मैं नशेई नहीं हूँ। इसने मुझसे तजुब से कहा, अच्छा तुम नशेई नहीं हो? तो यकीनन मैं नशेई हूँ, नशा करता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, क्या भी लो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसने कहका लगाया, उस टेबल पर उंगलियां बजाते हुए गुनगुनाने लगा, यारो मुझे माफ़ कर दो, मैं नशे में हूँ यारो। वो देखने में ना सिर्फ बहुत हैंडसम, पढ़ा लिखा और नफीस मिजाज का था, बल्कि खासा खुश ज़ोक और खुश गुफ्तार भी वाक़ई हुआ था। गाड़ी अप मॉडल की थी, अच्छी कंडीशन में मौजूद थी। इसने बड़ा शानदार सूट पहन रखा था। बाल निस्बतन छोटे फौजियों के अंदाज में तराशीदा थे। चूँकि गाड़ी का हीटर चल रहा था, इसलिए इसकी सीट पर कोट लटक रहा था। इसकी गुनगुनाहट थम गई। होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ के बोला, यार तुमने मेरा एक्सरे कर लिया है, अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दिखा दो। मेरा मतलब है तुम कुछ अपने बारे में कहो, खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैं मुसीबत का मारा हुआ शख्स हूँ, इसके सिवा मेरे पास कहने को कुछ नहीं दोस्त। खुद पर काबू पाने के बावजूद मेरे लहजे में तलखी घुल गई। वो बोला, ये दुनिया नहीं है, मुसीबत गाह है, टॉर्चर सेल। यहाँ हर कोई मुसीबत में है। कोई नई बात करो, बताओ, अपनी स्पोर्ट शॉल पर रोशनी डालो। ऐसी खूबसूरत शालें बेकदरे लोग अपनी गाड़ी पर डाल देते हैं, है ना? इसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। मैंने शर्मसार होकर कहा, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, और ईजाद की माँ के होते हुए तुम सर्दी से कांप रहे हो। वहाँ सा जख्म का खून जमा हुआ है, लगता है काफ़ी पुराना है। यकीन तुम्हें पट्टी बदलवाने का वक्त नहीं मिला। तुम्हारा नाम क्या है? असलम अली। मैंने झूठ बोला और सर झुका लिया। मैं इसकी नज़रों में मशकूक हो गया था। वो मुझे नशेई समझ रहा था और मैं अपने दिफा में खुद पर ढाई जाने वाली क़यामत को इस पर आश्कार नहीं कर सकता था, इसलिए खामोश हो गया। वो बोला, कहाँ से आ रहे हो? अब ये ना कहना कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से हर आदमी आता है। मैं बेले से आ रहा हूँ। क्या मुजफ्फरगढ़ में रहते हो? नहीं, मुल्तान में रहता हूँ। मैंने जवाब दिया। इधर क्या करने आए थे? वो बोला, सुबह की सैर का सुन रखा है, रात की सैर का तज़किरा किसी किताब में नहीं, इसलिए जवाब न देना। मैं रिश्तेदारों से मिलने आया था और उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। ज़रा ठुकाई शुकाई कर दे। कहा ना कि ये दुनिया टॉर्चर रूम है, नहीं बल्कि टॉर्चर कम्प्लेक्स है। वो हंसा। वहाँ से बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही वक्त हम चौकुरेशी से गुजरे
पूरा कस्बा गहरी नींद में मुस्तगरिक था। अड्डे पर कोई दुकान तक खुली भी नहीं थी। वो कह रहा था, डेर अगर मैं चाहता तो जो कुरैशी के थाने के सामने गाड़ी रोक देता और तुम्हें गैस हाउस में पहुंचाकर मुसीबतों से निजात दिला देता, मगर मैं अब तक तुम्हें पहचान नहीं सका। तुम वाकई किसी मुसीबत में हो या पेशावर डाकू हो। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं चोर डाकू नहीं हूँ। तो क्या पटवारी हो? वो हंसा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो ये भी बता देना कि तुम्हारा बस्ता कहाँ है। मैंने कहा, मैं पटवारी नहीं हूँ, मजदूर हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये लिखा है, पढ़ लो। इसने डैशबोर्ड पर नन्हे नन्हे अल्फाज अल्फाबेटिकल स्टिकर्स की मदद से लिखे हुए नाम की तरफ इशारा किया। मैंने ज़ेरे लब पढ़ा, शाहिद। यार तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। लिफ्ट मांगने के अलावा क्या काम करते हो? उसने नाम बताने के बजाय अंग्रेजी में लिखे हुए नाम की तरफ इशारा क्यों किया था? कहा तो है कि मैं मजदूरी करता हूँ। रेस कोर्स ग्राउंड में घोड़ों को नहलाते हो? इसने कमाल संजीदगी से पूछा। नहीं तो। मैं चौंका। मैं ज़मींदारा करता हूँ। मुल्तान शहर में? वो हंसा। नहीं, मुल्तान के करीब गांव में। झूठ। तुम्हारी आवाज़ बता रही कि तुमने झूठ बोलने का आगाज़ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मुझे तुम्हारा इंटरव्यू बंद कर देना चाहिए, इसने कहा और ऑटो बस टेप प्लेयर का बटन पुश करके केस की साइड बदल दी। लता की हम आवाज़ गुनगुनाने लगा। हमने सनम को खत लिखा। खत में लिखा, ए दिलरुबा, दिल की गली। इसकी गुनगुनाहट अचानक थम गई। मुझे देखे बगैर संजीदा लहजे में मुखातिब करके बोला, मिस्टर, अगर तुम खुद को गैर महफूज समझते हो और तुम्हें किसी दुश्मन का खौफ है तो वो कंपार्टमेंट में मेरा पिस्टल निकाल लो। फुली लोडेड है, काम आएगा। मैंने ट्रैकर उसे देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। उसे संजीदा पाकर मैंने कहा, शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं। वो कदरे तहकुमाना लहजे में बोला, खोलो तो सही। मैंने बेदिली से ग्लू खोला। उसने दुरुस्त कहा था। एक छोटे साइज का सिल्वर कलर का पिस्टल पड़ा हुआ था। मैंने पिस्टल को छुए बगैर शायद को सवाल नजर से देखा। वो बोला, चेक करो, एकदम जेन्युइन और वलायती माल है। मैंने पिस्टल उठाया, इसका सरसरी जायजा ले वापस रख दिया। वो बोला, चाहे तो रख लो, मैं और ले लूँगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और ग्लू बंद कर दिया। वो मुँह बनाकर बोला, मेरा अंदाज़ा भी गलत हुआ। सोचा था कि तुम गुडाकू हो, रात के शिकार की तलाश में भटक रहे हो, अगर असले से आ रही हो तभी सूलत दे दी। मगर जब तुमने पिस्तौल मुझ पर तान कर ये नहीं कहा कि निकाल दो जो कुछ तुम्हारे पास है, तो मुझे मायूसी हुई। मगर तुम क्यों लुटना चाहते थे? वो जिसकी शख्सियत दम बदम हैरत के समंदर में गरकाब के दे रही थी, ताकि तुम अपना काम करके चलते बनो और मेरा वक्त ज़ाया ना करो। इस नाम से अंदाज में कहा, छोड़ो इस तस्करे को, तो अपनी मुसीबत पर रोशनी ही डाल दो। देखते इस पिटारी से कौन सा सांप निकलता है। बाय द वे, मैं तुम्हारी मदद करने की पोजीशन में हूँ, चाहो तो फ़ायदा उठा लो। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारी यही मदद मेरे लिए नहायत है कि तुमने अजनबी होने के बावजूद मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, वरना अब तक मैं वह सर्दी में ठिठर ठिठर कर मर गया होता। मुस्कुराया। तुम आसानी से मरने वाले लगते तो नहीं हो। इसकी तवज्जो का मरकज़ मेरी ज़ात थी। मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा, तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? यानी मुझे इस वक्त ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? इसने रसान से कहा। हाँ, नुकसान का अंदेशा है। कैसा नुकसान? वो हमसे अंदाज में उस सबसे हुआ, जानी या माली, कोई सा भी। मैंने संजीदगी से कहा, मेरा नुकसान हो चुका है। मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय छीन ली गई है। अब किसी भी वारदात का खतरा नहीं रहा। इसने मुंह बनाकर कहा। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। वो बोला, ये दुनिया खूबसूरत अजाब कदा है। तुम सर्दी में ठिठर कर मरने जा रहे थे, जबकि मैं जलती हुई आग में खड़ा हूँ और मौत को आवाज़ें दे रहा हूँ। है ना अजीब बात के तुम भी नाखुश, मैं भी दुखी। मैंने कहा, तुम शक्ल से दुखी तो नहीं लगते? हाँ, खून उछल जाए तो चेहरा सफेद हो जाता है। वो बहुत बातूनी और चालाक था, बात से बात निकालता था। मैंने कहा, तुम डेरा गाजी खान से आ रहे हो? नहीं, मैं पुल गाजी घाट तक गया था। इस वक्त लोग वक्त के मोहताज हैं। सूरज निकलता है तो घर से निकलते हैं, सूरज के साथ साथ चलते हुए शाम को घर पहुंचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं सूरज की परवाह के बगैर घर से निकल खड़ा होता हूँ। उसे जब निकलना निकल आए, मुझे हो गया आज कभी होगा भी नहीं। इसके लहजे में गैर मुतवक्को तौर पर मायूसी घुल गई। बोला, पुल पर से दरिया में कूदने का इरादा था, यानी खुदकुशी का, फिर दिल ने साथ नहीं दिया। पानी बहुत ठंडा था। मरने से पहले मैं सर्दी की अजियत बर्दाश्त करना नहीं चाहता था, इसलिए इस अहम तरीन काम को किसी मुनासिब वक्त पर टाल कर वापस आ गया हूँ। खुदकुशी, मगर क्यों? मुझे इसकी बात का यकीन न आया। वो झूठ बोल रहा था।
کیونکہ خودکشی کا مرحلہ بہت گہرے دکھ کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ جب اس کا چہرہ طمانینت اور آسودگی کو ظاہر کر رہا تھا، میں نے کہا شاید تم مذاق کر رہے ہو۔ شاید۔ اس نے کندھے اچکائے اور سیٹی بجانے لگا۔ مجھے اچنبھا سا ہوا۔ اس اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ بہروپیہ معلوم ہوا، کبھی ہنسنے والا، کبھی رونے والا اور کبھی ایک دم سنجیدہ مزاج۔ میں نے چوٹ کی، اگر تم چاہو تو اپنی سٹوری کا سیکرٹ سنا دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اچانک خاموش ہو کے بولا، ہاں انسان کی مدد کر سکتا ہے، شاید اس لیے خدا نے ایک سے زیادہ انسان پیدا کیے ہیں۔ تو میرا دکھ سن لو، یہ بہت بڑی مدد ہوگی تمہاری۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے انٹرویو سے ہٹا کر جواب دہ کر لیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور کہا، میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ او نو، تم تو خود نشئی ہو، پتہ نہیں چرس پیتے ہو، پھر پھیپڑوں میں اتارتے ہو یا رگوں میں ٹیکے لگواتے ہو، پر مجھے کیا، میں تو اپنا دکھ بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں کہ سننے کے لیے تیار ہو۔ ہاں میں ہمدن گوش ہوں۔ وہ بولا، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اوفو، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ کرتا تھا کیا مطلب؟ کرتا ہوں، ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ میں نے کہا، محبت کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم اپنی بات جاری رکھو۔ یہ بھی بکواس ہے میرے دوست۔ کیا نام بتایا تو تم نے؟ ہاں، اسلم علی۔ یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، بل اونر اور سیاستدان ہیں، ان پر محبت کا دورہ نہیں پڑتا، ان پر دولت کی ہوس کا دورہ پڑتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی، چوری چوری ملاقاتیں کی، پھر پھڈا ہو گیا۔ یہی رانجھا اور سسے مہمال کی سٹوری میں ویلن موجود ہے نا؟ بس سمجھو ویسے ایک ویلن ہماری محبت کی کہانی میں آن وارد ہوا اور لو کرائسس شروع ہو گیا۔ ہم اس دوران مظفر گڑھ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا، شہر آ گیا ہے، ابھی تم کہو تو میں تمہیں اتار دوں۔ اس طرح میری محبت کی طرح میری کہانی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ اگر برا نہ مان لو تو میں گاڑی ایک طرف روک دوں، اپنی بات پوری کر لوں۔ اس کے لہجے کی معصومیت نے مجھے مضطرب کر دیا۔ وہ جتنا کھلنٹرا اور شوخ طبع دکھائی دیا تھا، اس سے کہیں زیادہ پریشان اور ملول نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، شاہد، میرا حلیہ ٹھیک نہیں، پولیس دیکھ کر دھر لے گی اور میں ایک نئی مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی روڈ سائڈ پر روک دے بولا، پولیس کا فکر نہ کرو، میرا دکھ سن لو، میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ اگر یہی حالت رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا یا کوئی دماغی رگ پھٹ جائے گی۔ اس نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے دلی دلی میں کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کار لائٹر سے سلگائی اور بولا، تھینکس گاڈ۔ پھر شیشہ اتار کر دھواں باہر اچھالتے ہوئے بولا، یار وہ بڑی خوبصورت تھی، اتنی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہونے لگتی تھی۔ وہ بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کا تہیہ کر رکھا تھا، مگر اس کا باپ ولن کے روپ میں ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ اسے اپنے کسی بھانجے یا بھتیجے سے بیانا چاہتا تھا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ میں نے لقمہ دیا، اس کی وہاں شادی ہو گئی جب اس کا باپ چاہتا تھا، اور تمہارا کھیل ختم۔ نہیں یار، یہ تو سادہ سا اینڈ ہے۔ میری کہانی کا اینڈ بڑا ایڈوینچرس ہے۔ میری محبوبہ ایک شام گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ اپنے کسی یار کے ساتھ مکالا کر گئی ہے، کسی نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت تھی اس لیے اسے اغوا کر لیا گیا۔ پہلی بات غلط تھی۔ اس کے چہرے پر تقدس کا اتنا طاقتور نور سب تھا کہ دنیا بھر کی سیاہی سے کالا نہیں کر سکتی تھی، یعنی اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ہائے، محبت انسان کو طاقت دیتی ہے مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں جو اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے کا دعویٰ رکھتا تھا، اسے بازیافت نہیں کرا سکا۔ تحفہ میری مردانگی پر، میرے اختیارات پر۔ ایک نے سگریٹ کا لمبا کش پھیپھڑوں میں اتارا اور شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھتے بولا، وہ نہیں ملی مگر میں زندہ ہوں، جبکہ میں نے کئی مرتبہ اس کی گہری آنکھوں کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا۔ جس دن میں نے یہ کہا تھا، اس دن نہ تو میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ ابھرا تھا، نہ ایک لوتی بہن کا، نہ باپ کا۔ آج جب اس عہد کو نبھانے کا وقت آیا تو سبھی چہروں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے یہ سائنس بھی پڑھ لی ہے کہ ایک کی محبت زندگی میں گنوا کر مجھے 3 سچی محبتوں کا گلا نہیں گھونڈنا چاہیے، ہے نا سائنس؟ امریکہ میں اس سائنس کا پیروکار ہے۔ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا چاہتا کہ بھارت کی تجارتی منڈی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا مصیبت گاہ ہے ڈیر۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا روند گیا اور چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔
मेरे इस तेजाब से लाताल्लुक था। बोला, आज मैं घर से चोर की तरह चुपके से निकला था। इरादा था कि गाजी घाट के पुल पर खड़े होकर अपनी महबूबा को पुकारूंगा, खुदा से पूछूंगा अगर इसने मुझे महिवाल की किस्मत में सोनी का मिलाप कराना ही लिखा था तो फिर हमें मिलाने की क्या ज़रूरत थी। करोड़ों अरबों की दुनिया में मेरे सिवा उसने किसी के दिल में सोनी की मोहब्बत क्यों नहीं पैदा की थी, है ना प्रॉब्लम। अगर मैं इसे मन मंदिर की रानी बनाने के काबिल नहीं था तो फिर उस वक्त फट क्यों नहीं गया जब मैंने उसकी खूबसूरत होंठों का पहला बोसा लिया था। मुझे आग क्यों नहीं लगी थी उस वक्त जब मैंने उस अपनी बाहों में भर कर खुदा को अपनी मोहब्बत का जामिन बनाया था। हाय दोस्त, मैं खुदा से यही पूछने के लिए गया था कि अगर इसकी इतनी बड़ी दुनिया में हम दो मोहब्बत करने वाले शादी कर लेते तो इसके फूल प्रूफ सिस्टम में क्या गड़बड़ रूनवा हो जाती। इसकी आवाज़ फटने लगी, मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं उसका कंधा थपथपाया और बढ़ता हैरत में डूबकर इस्तफसार किया, फिर क्या। उसने जवाब दिया, वो जवाब दे होना पसंद नहीं करता। मैंने कई मरतबा बुलंद आवाज़ में पुकारा, वो नहीं बोला। मगर पिकअप पर ड्यूटी देने वाले सिपाही ने सुन लिया और ललकार तो मेरे सर पर पहुंच गए। मुझे देखकर हैरान हुए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे पकड़कर अंदर कर देते और कहते, तुम कानून की इजाज़त के बगैर मरने का इख्तियार भी नहीं रखते। मैंने उन्हें गाली देकर भगा दी और खुदा को मुखातिब करके कहा, मैं एहतजाजन तुम्हारी दी हुई ज़िंदगी तुम्हें लौटाने आया हूँ। ये बहुत बड़ा दरिया है, इसे बंदे निकलना आता है, मैं जानता हूँ। मुझे तैरना नहीं आता, ये बात दरिया जानता है। वो एक पल को रुका, फिर बोला। ऐसे में माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहरा गया। वो कह रही थी, क्या एक लड़की इस काबिल हो गई है कि मुझसे मेरी ममता छीन कर दरिया के सपुर्द करने चल पड़ी है। चश्मे तस्वुर में कॉलेज जाती बहन नजर आने लगी। इसने कहा, भाई इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बाप के चेहरे की झुर्रियाँ गहरी होने लगी। वो भी बहुत कुछ कह रहा था। यार वहाँ सर्दी भी बहुत थी। दरियाई हवा ने मेरे इरादे की दीवार में अनगिन सुराख कर दिए, मेरी रूह के सभी जज्बों को मुंजमद कर दिया। और फिर साइंस ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, इससे समझाया कि तुम्हारे मरने से अगवा होने वाली को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, तुम्हारी बहन को अगवा होने से कौन बचाएगा, तुम्हारे बाप का सहारा कौन बनेगा, है ना बुज़दिली की बात। ओ डेर, मैंने इस डॉक्टर को आगे सर झुका दिया, क्योंकि दरपर्दा मैं भी मरना नहीं चाहता। जिंदगी एक बार मिलती है, लड़कियां बार बार मिलती हैं, है ना। पर मैं पागल हूँ, ये जानता हूँ, फिर भी उस लड़की के ही लिए सोचता रहता हूँ। न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया कि वो जहाँ है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा दूसरों के साथ भी होता होगा यकीनन। मैंने कहा, ये डॉक्टर मंतकी बुनियादों पर खड़ी है। इससे इनकार करने वाला जाहिल और बुज़दिल करार पाता है, इस पर अमल करने वाला दानिशमंद होता है। तुमने दरिया में ना कूद कर अक्लमंदी का सबूत दिया है। वो कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसे ही वक्त में मुझे सामने से आती हुई घूमती हुई नीली बत्ती वाली पुलिस मोबाइल दिखाई दी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने घबराकर वैन की तरफ इशारा किया। वो पुलिस की गाड़ी आ रही है, प्लीज़ यहाँ से निकल चलो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अपनी पैदा करदा सोगा ट्रांस से निकल आया और बोला, कहा ना फिक्र ना करो। मैंने जल्दी से कहा, तुम नहीं जानते कि मैं किन नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहा हूँ। पुलिस वाले मुझे देखते ही पकड़ लेंगे। क्यों, कि तुमने पुलिस वाले के पैसे देने हैं या कोई ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम हो। मैंने तवील सांस अलग से खारिज की। अगर हो भी तब भी फिक्र की कोई बात नहीं कि तुम कुछ खाओगे। नहीं। मैंने होंठों पर जुबान फेरी। ऐसे मोबाइल वैन करीब आ गई। शायद ने गाड़ी की लाइट से रुकने का इशारा करके मोबाइल वैन को रोका। नीले रंग की मोबाइल वैन, जिसके बोनट पर सफेद रंग से बड़े रूप में पुलिस लिखा हुआ था, सुजुकी के ऐन सामने चंद कदमों के फासले पर आन रुकी। मैंने शाकी नजरों से शाहिद को देखा, जो लापरवाह बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। मैं बुरी तरह फंस गया था। बैठा रहता तो हिरासत में ले लिया जाता, भागने की कोशिश करता तो मेरी कमर छिलनी हो जाती। मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं खौफजदा नज़रों से वैन के ड्राइवर के बराबर बैठे हुए पुलिस एहलकार को देखने लगा, जो दरवाज़ा खोलकर शाहिद की तरफ आ रहा था। इसने सलाम किया और कदरे मोदिबाना लहजे में कहा, खैर तो फौजी साहिब, आज हमारी जगह ड्यूटी देने लगे हैं। शाहिद ने हंसकर कहा, ओए निक्के थानेदार, ये ड्यूटियाँ शूटियाँ तुम्हें मुबारक हों। मैं तो देख रहा था कि तुम लोग अपने बड़े साहिब को चक्कर देते हो या वाकई रात को गश्त पर निकलते हो। कोठी पर जाकर इन्हें बता दीजिएगा कि इनके मातहत किस जांपशानी से सरकारी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसने जवाबन दांत निकाले। ये कौन साहिब आपके साथ? ये मेरा रकीब है। हा रकीब, पर तुम क्या जानो ये रकीब किस बला का नाम है। शाहिद पर सवार गमो इंदो का तासुर चंद लम्हों में ज़ाहिर हो गया तो बोला, ओए निक्के थानेदार, सच बोल,
तेरे कानून के पास कोई ऐसी दफ़ा है जिसके लगाने से मेरे रकीब सारी उम्र हवालात में पड़ा रहे और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे शोजा करता रहूं? जी साहिब, हमारे कानून में हर दफ़ा मौजूद है, आप हुक्म करके देखें। नगीने की तरह कानून की अंगूठी में ऐसे जड़ूंगा कि क़यामत तक निकल ना पाए। निक्का थानेदार छाती फुलाकर बोला, एक बस बाबा जी को संभालना आपके जिम्मा रहा, इसे सारी उम्र चक्रों में डाले रखना मेरा काम। मेरी सांस हलक में अटकी हुई थी। मुझे दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर यह अंदाज़ा हो गया था कि शाहिद कोई मामूली हैसियत का शख्स नहीं था, बल्कि किसी बड़े ऑफिसर या सियासतदान का मनचला बेटा था। और इस सब इंस्पेक्टर उर्फ निक्के थानेदार से खासा बेतकल्लुफ भी था। सब इंस्पेक्टर सुजुकी क्वार्टर्स की छत पर हाथ रखकर झुको इजाजत तलब अंदाज में बोला, कोई खिदमत है हमारे लायक है? यार उधर जंग मोड़ से 2-4 नमकीन कुकर पकड़ लाओ, जोर की भूख लगी है। ये कमबख्त गाड़ी चलती कम और उछलती ज्यादा है, खाया पिया सब हजम करा देती है मिनटों में। ये पकड़ो पैसे और इसके सर पर खड़े होकर रोस्ट कराना, ज्यादा नहीं, बस 2 चिकन चेस्ट पीस। उसने जेब में से एक बड़ा नोट खींचा और सब इंस्पेक्टर को थमा दिया। इसने मुरब्बतन 2-3 मरतबा नोट लुटाना चाहा, मगर शाहिद ने सख्ती से रोक दिया और कहा, तुम मुझे 2 पीस खिलाकर आवाम से 20-80 कुकड़ ईंट लोगे? ना यार, मुझे बददुआओं से बड़ा डर लगता है। तुम लोगों को तो खैर तोप से भी खौफ महसूस नहीं होता। ओए हाँ, पानी की बोतलें भी पकड़ लाना। वो हंसता हुआ पलट गया और गाड़ी में बैठकर वापस जंग मोड़ की तरफ रवाना हो गया। मेरे दम में दम आया। शाहिद शगुफ्ता लहजे में बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फिक्र की कोई बात नहीं है। तुमने मुझ पर डाका नहीं मारा, भले दुनिया को तिगनी का नाच नचाओ, उंगली पर थिरकाओ, मुझे क्या, वैसे दुनिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने मरूबों को पूछा, तुम क्या काम करते हो? वो बोला, बताया तो है कि ज़िंदगी में एक ही काम छेड़ रखा था, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं अपने इश्क की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, इसके अलावा फौज में हूँ, वर्जिश करने के पैसे सरकार से ईंटता हूँ, अच्छा खाता हूँ, ठंडा गर्म सब पीता हूँ, मगर जब से मेरी माशूका अगवा हुई है मैं ड्यूटी पर नहीं गया। उधर फौज में अपना एक यार बैठा हुआ है, वो कभी मेरी हाजिरी लगा देता है, कभी छुट्टी, और महसूस न करना। पुलिस वाले से मजाक किया है मैंने, तुम मेरे रकीब नहीं हो। वैसे तो उस वक्त पूरी दुनिया मेरी रकीब है और मेरा जी चाहता है कि शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक हर चीज़ को आग लगा दूं। वो बड़ी रवानी से गुफ्तगू करता था। खूब रूई के बाद उसकी दूसरी बड़ी खूबी थी। थोड़े तवक्कुफ के बाद गोया हुआ, हम क्या बात कर रहे थे? तुम अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी सुना रहे थे। मैंने याद दिलाया, हाँ यार, बहुत गलत हुआ, मेरी महबूबा गायब हो गई। मैंने तो बताया नहीं था कि इसके साथ उसका नन्ना मुन्ना सा भाई भी अगवा हुआ था। वो कुछ अरसा के बाद अचानक घर पहुंच गया। तब तक मैं, मेरा बाप और लड़की के माँ बाप, इन दोनों की ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। जब बच्चे ने बताया कि इसकी बहन भी जिंदा है, तब कार्य जस्तजू के लिए हमारे जिस्मों में नई जान पड़ गई। मगर बाज़िया भनोरा बच्चा ऐसा कोई कुली न दे सका जिस पर चलते हुए मैं, इसके वालिदैन या पुलिस मगविया तक पहुंच जाते। मैंने उसे बहुत कुरेदा, मगर उसने अजीब और नासमझ आने वाली कहानी सुनाकर मेरे ज़हन को उलझा दिया। मैं हवनकों की तरह उसे देख रहा था। अचानक मेरे ज़हन में छपाका सा हुआ और आग ही का नया जान मुझ पर खुलता चला गया। मेरी नज़रों के सामने एक पल को वहीद का चेहरा झिलमिलाया। वो अपनी बहन आशी के साथ अगवा हुआ था और मुझे बेले में जाँ बलब मिला था। फिर उसे मुल्तान से गाड़ी में बिठाकर घर अकेले रवाना कर दिया गया था। आशी का गमज़दा दीवाना जिससे मिलने के लिए वो मुजफ्फरगढ़ आया करती थी, यकीनन यही था, शाहिद सलीम। मैंने धड़कते दिल से पूछा, डैशबोर्ड पर तुम्हारा नाम शाहिद लिखा है, तुम्हारा पूरा नाम शाहिद सलीम है? वो चौंका, हाँ, मेरा नाम शाहिद सलीम है। मुझे तख्लीक करने वाले सलीम शहजाद SSP हैं और उन्होंने अपना नाम मेरे नाम के साथ जिसे चिपका रखा है कि उसे कभी फरामोश न कर सकूं। मगर तुम कैसे जानते हो? मुझसे गलती सरजद हो गई थी, मामले को संभालने की मैंने बात मिलाई। मैंने तुम्हारा नाम सुन रखा था। सब इंस्पेक्टर का मुद्दिबाना रवैया देख मैंने नजर लगाया कि तुम सुप्रीडेंट पुलिस के बेटे शाहिद सलीम हो। मेरा अंदाज़ा ठीक साबित हुआ। वो सर हिलाकर बोला, चिकन पीस आ रहे हैं, वो खा लें, फिर बात करेंगे। पुलिस की मोबाइल वैन दिखाई दी। चलने बाद सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल वैन से उतरकर शाहिद को फूड पैक, मिनरल वाटर की 2 छोटी बोतलें और बकाया रकम थमाई और माथे पर हाथ रखकर सलाम करता हुआ रुखसत हो गया। शाहिद ने फूड पैक खोलकर दरमियान में रख दिया। गाड़ी में इश्तिहा अंगेज खुशबू फैल गई। वो टमाटो केचप के साशे को नाखूनों की मदद से खोलते हुए बोला, मोजा शोजा उड़ाओ डेर, इसे मेरी कहानी को अच्छे सामी की तरह सुनने का इनाम समझो। मैंने एक चिकन पीस उठा लिया। पूछा, तुम्हारी महबूबा के भाई ने वापस आकर क्या बताया? नन्ना बड़ा अपसेट था, नॉर्मल नहीं था। इस पर मैंने बड़ी मेहनत की और पुलिस के रवायती हथकंडों से बचाकर मालूमात हासिल की। क्या बताया उसने? मैंने दिलचस्पी ली। हाँ, जो बताया वो भी कारआमद न हुआ।
اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی بڑی بہن سائیں دلجیت سے ملنے کے لیے نورپور نامی گاؤں میں گئے تھے۔ انہیں سائیں نے شربت پلا کر بے ہوش کیا اور کسی نامعلوم مکان میں شفٹ کر دیا۔ میں نے پولیس کو لے کر سائیں دلجیت پر ریڈ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسے نورپور سے فرار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ کیسے رہا ہوا یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں نے کریدا۔ اس نے قہقہ لگایا، پھر تادیر ہنستا رہا۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیا ہوا کہ اسے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا تھا؟ اس نے عجیب سے انداز میں آنکھیں پھیلائیں اور مجھے بغور دیکھا بولا، دیکھا ہمارے باپ دادا کتنے چالاک لوگ تھے۔ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ عورت کے دل کا راستہ اولاد سے جبکہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے نکلتا ہے۔ چکن پیس ہاتھ میں آتے ہی بڑی دلچسپی میری کہانی میں زیادہ ہو گئی ہے۔ مجھے ایک ذرا شرمندگی ہوئی۔ میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا، چٹنی بھی لو نا۔ شرمندہ کیوں ہوتے ہو بھائی؟ زندگی کھانے پینے کے علاوہ ہے ہی کیا؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ننے مغوی نے واپسی پر ان 2 اشخاص کے نام بھی بتائے تھے جو اسی کسی جنگل سے نیم مردہ حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ ملتان لے گئے تھے۔ ایک کا نام شہریار جبکہ دوسرے کا نام خالد عرف کھالا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہریار کا گھر نورپور میں واقع سائیں جگجیت کے مزار کے قریب ہے۔ ہمیں وہاں جا کر پتہ چلا کہ خالے کا گھر بھی اسی گاؤں میں واقع تھا۔ دونوں آپس میں بڑے جگری یار تھے اور دونوں ہی گاؤں سے غائب تھے۔ نہ سائیں ملا نہ وہ دونوں ہاتھ لگے۔ تفتیش جہاں سے شروع ہوئی تھی بدقسمتی سے وہیں پر ختم ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر سپیڈو میٹر کی تھمی ہوئی سوئی پر نظریں مرتکز کر کے خاموشی سے پیس کھانے لگا۔ جو لگا جیسے میری موجودگی اچانک اس کے نزدیک بے معنی ہو گئی تھی۔ میرے پیٹ کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی۔ میں نے واٹر کی آدھی بوتل حلق سے اتاری اور باکس میں پڑے ہوئے ٹیشو پیپر سے کھینچ کر ہاتھ صاف کیا۔ کہا، یار تم تو واقعی بہت دکھی انسان ہو۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا، پھر چیلنج بھری نظروں سے مجھے گھورتا ہوا بولا، کہ تم میری مدد کر سکتے ہو اگر چاہو تو۔ وہ کیسے؟ میں چونکہ بنا نہ رہ سکا۔ تم ملتان میں رہتے ہو، شکل سے اعلیٰ درجے کے آوارہ لگتے ہو، کوشش کرو تو ان دونوں کا کھوج لگا سکتے ہو جنہوں نے ننھے وحید کی جان بچائی تھی۔ ہیں؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ پوچھا، تم انہیں کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یار وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ انہوں نے وحید کو کہاں سے اٹھایا؟ اگر انہوں نے تمہیں کچھ نہ بتایا تو وہ بڑے یقین سے بولا، وہ دنیا کے سب سے بڑے کمینے انسان ہوں گے جو میرے دکھ بھری داستان سن کر بھی تعاون پر آمادہ نہ ہوں گے۔ اگر انہیں کوئی مجبوری لاحق ہوئی تو میں کمپرومائزنگ تھیوری پر عمل کروں گا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں سلیوٹ کروں گا اور اپنی قسمت کو روتا دھوتا لوٹاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ایک انسان کی جان بچانے کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے۔ اس کا لہجہ بڑا پختہ مگر کرب سے لبریز تھا۔ اس کی نیم بھرائی ہوئی جذبات سے مغلوب آواز نے مجھ پر اداسی اور شکست خودگی طاری کر دی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ممکن ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے منظر عام پر نہ آنا چاہتے ہوں۔ ایسی حالت میں تم کیا کرو گے؟ میں نے کسی کے سامنے لے جانا بھی کیوں چاہوں گا؟ مجھے وہ نہیں، اپنے چند سوالوں کے جواب درکار ہیں۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا کہ تم انہیں تلاش کر سکتے ہو۔ میں نے فوراً جواب نہیں دیا، سوچ میں پڑ گیا۔ دل اس کی مدد کا ارادہ رکھتا تھا مگر ذہن الجھن زدہ تھا، چونکہ وہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کا بیٹا تھا، کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتا تھا۔ وہ میری خاموشی کو انکار سمجھ کر بولا، یار تم کوشش تو کر سکتے ہو۔ دیکھو اگر تمہیں پیسوں کی پرابلم ہے تو سمجھو اٹ از نو پرابلم، جتنے مانگو گے اتنے دوں گا۔ اگر تمہیں ڈھونڈ نکالو گے تو تگڑا انعام بھی دوں گا۔ میں نے کہا، شاہد تم بہت اچھے انسان ہو، ایک لڑکی کے لیے اتنی سنجیدگی سے سوچتے ہو، یہ تمہاری عظمت کی دلیل ہے، مگر کہا نا میری مدد کرو، میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گا۔ اس ٹرین پہ زور سے ہاتھ مار کر بولا، میں اس دوران فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اس پر اپنا آپ آشکار کر دینا چاہیے۔ میں نے ایک طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور کہا، اوکے مسٹر شاہد سلیم، میں تمہاری الجھنیں دور کر دیتا ہوں، مگر بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ وہ ایک دم میری جانب پلٹا اور میرا بازو تھام کر سنجیدگی سے بولا، مجھے تمہاری ہر ڈیمانڈ منظور ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میری مدد کرو، بس مجھے پیسے نہیں، یہ وعدہ چاہیے کہ تم مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو گے اور نہ ہی منظر عام پر لاؤ گے۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی استجاب رقم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں کیوں پولیس کے حوالے کروں گا؟ کہ تم نے کوئی جرم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا بھی ہے تو مجھے کیا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، بس تم کسی طرح دونوں کو تلاش کر دکھاؤ۔ میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، میں تو محبت کرنے والا انسان ہوں، اور میں کسی کو گزند پہنچانے کا خواہش مند ذہن نہیں رکھتا، صرف اسے الٹا لٹکاؤں گا جس نے میری جان من کو میری نظروں سے دور کر رکھا ہے۔ اس کے رویے نے اس کے اخلاص کو مجھ پر عیاں کر دیا۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا اور کہا، تو پھر وعدہ کرو، اپنی محبوبہ کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو گے۔ اس نے بڑے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا، کچھ سوچا اور کہا، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں
کہ تم اپنا دوست سمجھتا ہوں، میرے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ٹھہر ٹھہر کر کہا، شاہد، میں نے تو اپنا نام اسلم بتایا تھا۔ میں اسلم نہیں بلکہ شہریار ہوں، وہی جس نے وحید کی زندگی بچائی تھی۔ میں تمہاری اور عاشق کی محبت سے بھی واقف ہوں۔ لو، میں نے تمہاری بہت بڑی الجھن دور کر دی۔ تم اپنا وعدہ نبھانے کا فکر کرو۔ میری آواز سے چیلنج جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کھلنڈرا پن انقا ہو گیا اور وہ مجھے ایک ٹک دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے عاشی کا حوالہ دیا تھا، جبکہ اس نے مجھے اپنی محبوبہ کا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ بولا، تم شہریار ہو، وہی جس نے وحید کو بچایا، اور تم نے میری محبوب ترین ہستی کا نام بھی لیا ہے۔ عاشی، کیا تم نے یہی کہا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ اب تم جو چاہو دریافت کر لو، میں بتانے کو تیار ہوں۔ اس کی لمبی زبان شاید دانتوں تلے دب گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی تھکی تھکی آواز میرے کانوں میں پڑی، اگر تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کہا تو ہے کہ مصیبت میں ہوں۔ کس مصیبت میں؟ یہ لمبی اور غیر متعلقہ کہانی ہے، تم اپنی بات کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس نے ایک ذرا مجھے دیکھا اور ہنسا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتے بولا، ہم گھر چل رہے ہیں، وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں شاہد، جو پوچھنا یہی پوچھ لو، پھر جھنگ موڑ پر اتار کر گھر چلے جانا، وہاں سے مجھے ملتان کے لیے بس یا ویگن آسانی سے مل جائے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور حتمی انداز میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری حالت درست نہیں، جو بھی دیکھے گا مشکوک ہو جائے گا۔ صبح ہونے والی ہے، نہا کر چینج لینا اور ناشتہ ہڑپ کر کے ملتان چلے جانا، مجھ پر شک نہ کرنا، میں نے تم اپنا دوست کہا ہے اور کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے خلوص پر حرف آئے۔ کہا نا، تمہارا باپ، تم نے اگر 50 قتل کر رکھے ہیں اور کروڑ روپے تمہارے زندہ یا مردہ سر کی قیمت مقرر ہے، تب بھی میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے یار۔ میں نے اس کے پختہ ارادے کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور سر جھکا لیا۔ لذیذ چکن پیس نے جسم کو توانائی دی تھی۔ کار کے چلتے ہوئے ایئر ہیٹر نے رگوں میں اتری ہوئی سردی کو نوچ پھینکا تھا، مگر میں مکمل طور پر فٹ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے سر کے زخم کی نوعیت کیا تھی، مگر یہ محسوس ہوتا تھا کہ زخم علاج طلب تھا، آرام کی بھی ضرورت تھی۔ سخی محمد کے ساتھ دوابے کی طرف جانے کے لیے میڈم کی کوٹھی پر پہنچنے کے بعد سے اب تک ایک لمحہ بھی چین کا نہیں آیا تھا۔ شاہد دیکھنے میں بے ضرر اور یارباش انسان تھا، اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، تبھی میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جنگ موڑ پر پولیس وین کھڑی تھی، چکن پیس لا کر دینے والا سب انسپیکٹر 5-6 سپاہیوں کے نرغے میں ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ سبھی نے ہاتھوں میں ربڑی دودھ کے پیالے تھام رکھے تھے۔ شاہد ان کے قریب جا کر گاڑی آہستہ کی، شیشہ اتارا اور نعرہ لگایا، شاباش بھائی سرکاری جوانوں۔ سبھی نے بیک آواز جواب دیا، شاہد صاحب زندہ آباد۔ وہ پیچھے رہ گئے۔ شاہد نے ہونٹس کھول کے سیٹی بجائی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مین روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ کے نیلے اور سرنگ کے بڑے آہنی گیٹ پر بریک لگائے۔ ہارن کے آواز سن کر گیٹ کے ملکہ سیکورٹی روم میں سے ایک سپاہی برآمد ہوا۔ اس نے شاہد کو سلام کرنے کے بعد گیٹ کھول دیا۔ سرکاری کوٹھی کی عمارت گیٹ سے کوئی 300 فٹ کے فاصلے پر اپنے کررف پر سمیت موجود تھی۔ پارکنگ میں نیلے کلر کی نیلی بتی والی ایک لینڈ کروزر اور ایک سفید رنگ کی ٹوٹا کرولا کھڑی تھی۔ شاہد نے پارکنگ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی گیٹ وے پر کھڑی کر دی اور مجھے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول کے اتر گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ باہر قدم رکھتے ہی سرد ہوا کا جھونکا بدن سے ٹکرایا اور مجھے یاد آیا کہ میں زندگی جیسی طویل اور موت جیسی سرد رات کا مسافر تھا۔ کوٹھی کے اگلے حصے میں 2 سنتری گیس ہیٹر اون کیے اسٹولوں پر بیٹھ کر ہاتھ سینک رہے تھے۔ انہوں نے شاہد کو سلوٹ کیا۔ شاہد نے تحکمانہ لہجے میں کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، گیزر آن کر دو تاکہ منہ ہاتھ دھو لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ کوٹھی کے اندر چلا گیا جبکہ ایک سنتری مجھے گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ میں صوفے پر بیٹھ کر جس نے گیس ہیٹر آن کر دیا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے تشکیق آمیز لہجے میں بولا، صاحب میں گیزر چلانے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو میں نے سرسری نظروں سے گیسٹ ہاؤس کا جائزہ لیا۔ کافی پر آسائش جگہ تھی، آرائش کا انداز بھی سادگی مگر جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہد کی آواز سنائی دی۔ وہ سنتریوں سے باتیں کرتا ہوا گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا، سیدھا میری طرف آیا اور کھڑے کھڑے بولا، کچھ دیر میں پانی گرم ہو جائے گا، میرا خیال ہے تم نہا لو اور فریش ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے کہا، اس وقت؟ پانی گرم ہو تو پھر دن کیا اور رات کیا؟ وہ آنکھیں نچا کر بولا، تمہاری حالت خاصی رف ہے، پہلی نظر میں اجڑ اور پیشہ ور چور ڈاکو معلوم ہوتے ہو۔ میں نے بدن پر لپٹی ہوئی ترپال، کیچڑ اور دھول میں اٹی ہوئی نوروزی چپل اور میلے چیک لباس پر نظر ڈالی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے قدرے تحکم آمیز آواز میں کہا، تمہیں یقیناً میرا لباس فٹ آئے گا، پہن کر اس خرقے سے نجات حاصل کر لو۔ میں نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا، مگر میرے سر میں زخم ہے، گیلا ہو کر خراب ہو جائے گا، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔
वेट फॉर अ मोमेंट डेयर। वो एड़ों के बल घूमा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हैंगर में लटकता हुआ सूट और मेडिकल किट उठा लाया। इसने मुझे ट्यूबलाइट के नीचे कालीन पर बिठाया और पट्टी खोलकर जख्म का जायजा लेने लगा। बोला, जख्म तो खासा गहरा है, शायद खराब भी हो गया है। नहीं, अभी पीप नहीं पड़ी। इसकी सफाई करके वाटरप्रूफ जेल लगा देता हूँ। ना तो एहतियात से काम लेना, बाद में पट्टी कर दूंगा। जदीद तर्ज की मेडिकल किट में हादसाती सूरत हाल से निपटने का जरूरी सामान मौजूद था। इसने जख्म के अतराफी झील साफ की, बाल काटे, उस स्पिरिट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की मदद से सफाई करने लगा। महसूस हुआ कि तकलीफ में पहले से शिद्दत नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या टांके लगाने पड़ेंगे? नहीं, जख्म गहरा है, बड़ा नहीं है जिस गधे डॉक्टर ने पट्टी की थी। अगर उस स्वीप जगह सही रखता तो अब तक जख्म ठीक हो चुका होता। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, इसने दिलासा दिया। मुजफ्फरगढ़ आने से पहले पापा की अपॉइंटमेंट डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में थी। वहाँ पापा का एक दोस्त हुआ करता था, डॉक्टर अकमल मजीद। मैं उसे अंकल बिल्कुल जदीद कहा करता था। वो ना सिर्फ पापा का बल्कि मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे मैथ की ट्यूशन दिया करता था और मैंने इससे मैथ पढ़ने के साथ साथ ये काम भी सीख लिया है। ना मजे की बात। मैंने इस बात में सर हिला तो गुस्से से बोला, जुबान हिलाओ, सर को हरकत ना दो। पेंडू पेशेंट। इसके हाथों की हरकत माहिराना थी। जख्म पर जेल का लेप करने के बाद इसने मुझे सूट थमाया और बाथरूम की तरफ धकेल दिया। शेविंग का सामान अलमारी में पड़ा है, ये झाड़ झंकार भी काट फेंकना। बहुत बुरा लग रहा है। इसने दुरुस्त कहा था, मुझे फ्रेश होने के लिए बात लेना चाहिए था। गर्म पानी न सिर्फ मेरी थकन उतारी बल्कि मैं खुद को नहायत हल्का फुल्का महसूस करने लगा। यूं लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मुयस्सर आ गई हो। चेंज लेने के बाद कदे आदम आईने ने तायीद की कि मैं वाकई चेंज हो गया था। बालों को एहतियात से सवारते बाथरूम से बाहर आया तो मुझे देखकर खुश होकर बोला, अब हुई ना बात, तुम तो अच्छे खासे इंसान निकले डेर। मैं खिसिया कर इसके हाथ का इशारा पाकर कालीन पर बैठ गया। वो कार्टून स्वीप की मदद से जेल साफ करते बड़बड़ाया, नहायत बदतमीज इंसान हो यार तुम। कहा भी था कि एहतियात से काम लेना। 300 रुपए की इम्पोर्टेड जेल लगाई थी ताकि जख्म गीला ना हो। तुमने फिर भी जख्म गीला कर दिया। उफ हो, जाहिल शख्स की जारी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। पर एक बात है मिस्टर पेंडू, तुम्हारे बाल बड़े मुलायम और शाइनी हैं, एकदम किसी यंग फ्रेंच गर्ल की तरह। वाह। नीटो टेप की मदद से इसने स्मार्ट बैंडेज की, एंटीबायोटिक और पेन किलर गोलियां खिलाई और उठकर सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए मुझे फारिग कर दिया। मैंने उसे बेहद ममनून निगाहों से देखा तो बड़ी लापरवाही से बोला, मैं जूते लेने जा रहा हूँ, तो मत मारूंगा नहीं, पहनाऊंगा। फिर कालीन पर मेरे उतारे हुए लिबास और तलपार पर पड़ी हुई नौरोजी खिड़ी की तरफ इशारा करते हुए दिल खोलकर हंसा। ये लकड़ी मार का खड़ो तो म्यूजियम में रखने के लायक है। पैरों में डालकर इनकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। इसे देखो कैसी अजीब टोपी है, शायद ज़हीरुद्दीन बाबर की किसी मुशीर वजीर की है। और हाँ, चाय का मूड है। मैंने शर्मसार होकर कहा, शाहिद मैं इतना अहम नहीं हूँ, मुझे मतलब भी है तुमसे। वो हंसकर बोला और गैस हाउस से निकल गया। कोई 10 मिनट बाद जूतों का डिब्बा जिस पर एक महंगी कंपनी का मोनोग्राम छपा हुआ था उठाए लौटा और मेरे पैरों के करीब फर्श पर रखते बोला, इसमें जुराबे भी हैं, पहन लेना। थोड़ी देर में संतरी बादशाह चाय ले आएगा, पीना और उधर जाकर सो जाना। मैं भी थका हुआ हूँ, जाकर आराम करूंगा, सुबह बात होगी, ठीक है ना। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराई। सुबह तो होने वाली है। वो बोला, मैंने कहा था ना कि मैं सूरज की हुक्मरानी कबूल नहीं करता, जब जागूंगा तब मेरी सुबह होगी। ओके डे, टेक केयर एंड सी यू इन कमिंग मॉर्निंग। इसने हाथ लहराया। दिल आवेज खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी जानिब उछाली और पलटकर नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद संतरी ने चाय का कप मेरे सामने मेज पर रख दिया। चाय पीने के बाद मैं जूते और जुराबे उठाए मलिका बेडरूम में घुस गया। नहायत आरामदेह बेड पर गिरते ही मोटे मुलायम कंबल ने मुझे आगोश में लेकर गहरी नींद सुला दिया। जहन की गुलाम गर्दिशों में चकराने वाला आखिरी रक्सा ख्याल यही था कि वह मौत का लंबा सफर तय करके जिंदगी की पुरहिद्दत आगोश में सर रख चुका था और किस्मत मुझे उस शख्स से इत्तफाकन मिला दिया था जिससे मिलने की ख्वाहिश मेरे दिल में चुपके चुपके पलती रही थी। मेरे दिल में चुपके चुपके पलती रही थी।